Hello everyone, in this video we will discuss about distance formula and section formula in chapter 7 coordinate geometry in class 7. So what is the distance formula? Distance formula is used to find the distance between two given points. You will be given with 2 points, any 2 points, and you have to find the distance between the 2 points, then you will use the distance formula. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है distance formula, it is used to find the distance between 2 points. Suppose you are given 2 points 8, 5 and B 6, 2. Okay, now you have to find the distance between these 2 points. So how will you find distance between these points? First of all, I am writing here the distance formula, and the distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and square root of this. स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये ध्यान रखना है आपने कि ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन आना है और यहाँ पर प्लस का साइन आना है. इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से इसको लर्न करें. सो हाउ विल वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b? दिस डिस्टेंस a बिटवीन a एंड b विल कॉल्ड ab. ab इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. Now, which point we will take x1, y1 and which point we will take x2, y2? It's our wish. हमारी मर्जी है. हम चाहे तो x1, y1 इन 2 पॉइंट्स को ले सकते हैं और x2, y2 इनको, या हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि हम x1, y1 इसको ले लें और x2, y2 इसको. इससे डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके, नाउ सपोज आई हैव टेकन x1, y1, x2, y2. ओके, नाउ x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 8 whole square, then plus y2 minus y1, this is y2, this is y1, so 2 minus 5 square root. Now 6 minus 8 is minus 2 square, 2 minus 5 is minus 3 square, and square root equal square root of minus 2 square is 4 because squares are always positive, plus 3 square is 9, and the distance between a and b is root 13 units. You will write units when you are finding the distance between 2 points. One more example I have taken. Suppose the point P is minus 1, 1 and the point Q is 2 minus 3, and we have to find the distance between P and Q. So we will use the distance formula, and PQ will be square root of, now again this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. आप ऐसे x1, y1, x2, y2 लिख लेंगे इनके ऊपर, तो ये आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, इजी रहेगा. नाउ x2 माइनस x1, x2 is 2 minus x1. Now x1 is negative, so when we are using minus sign and the x1 value of x1 is negative, then it will become plus, because यहाँ माइनस है और x1 की वैल्यू भी नेगेटिव है, it will become plus. So 2 plus 1 whole square, then plus y2 minus y1, y2 is minus 3 and y1 is 1, so minus 3 minus 1 whole square. Now 2 plus 1 3, minus 3 minus 1 is minus 4, and we know that the square of negative number is also positive. Now this is 9, this is 6, 16, and 9 plus 16 is 25. Now we can take square root of 25, that is 5 units. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है PQ, दैट विल बी 5 यूनिट्स. डिस्टेंस फॉर्मूला इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल और एनी क्वाड्रिलेटरल. डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप ये चाहें कि यू हैव टू फाइंड सपोज दैट द लेंथ ऑफ दिस साइड AB और BC और AC, देन ऑल्सो यू कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला. Length of a side, it means you have to find the distance between these 2 points and distance between these 2 points and this. So you can check whether this triangle is isosceles or equilateral or scalene. कैसे? If you find AB, BC and AC, okay, you have find all the 3 sides, length of all the 3 sides, and if any 2 sides are equal, कोई भी 2 साइड अगर इक्वल हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है. तो अगर तीनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है. इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को चेक कर सकते हैं, वेदर इट इज़ ए स्क्वायर और इट इज़ अ रोम्बस और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल. अगर इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं
तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। और अगर इसके डायगोनल भी इक्वल हो जाएं साथ साथ, देन इट विल बी अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलीगन की साइड की लेंथ भी डिस्टेंस फॉर्मूला से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से एक तो हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दूसरा हम किसी भी ट्रायंगल, किसी भी क्वाड्रेटर या किसी भी अदर पॉलीगन की साइड की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेक्शन फॉर्मूला, व्हेन वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला, कब इसका यूज होगा ये आपको कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है एग्जाम में कि हमें यूज़ करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, मगर स्टूडेंट यूज़ करता है सेक्शन फॉर्मूला। और अगर किसी क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होना है तो स्टूडेंट गलती से बाय मिस्टेक वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहा है। तो हमें ये कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, व्हेन वी हैव टू यूज़ डिस्टेंस फॉर्मूला एंड व्हेन वी हैव टू यूज़ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का एक बहुत ही सिंपल सा उसकी पहचान है कि आपको एक रेशियो गिवन होगा। सपोज AB is a line segment joining any two points. Suppose this is 1 3 and this is -1 4. Okay, AB is the line segment joining these two points and there is a point P on this line in between A and B, and it divides this AB in any ratio. Suppose 3:2. When the ratio will be given, then only section formula will be used. तो एक लाइन सेगमेंट होगा जिसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, एक उस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट होगा, एनी पॉइंट विच विल डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन एनी रेशियो, किसी रेशियो में वो डिवाइड कर रहा होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अब कैसे इसके फाइंड करने हैं हमें कोऑर्डिनेट, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये हमारा AB एक लाइन सेगमेंट है जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स तो हैं x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, एंड देयर इज अ पॉइंट P विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1:m2. ओके, नाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बहुत इजी है ये, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द एब्सिसा ऑफ P, ये x की वैल्यू आ गई है। नाउ सेकेंड एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ y विल बी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द section formula. You will use this section formula to find the coordinates of P which lies between A and B. So now we will find the value of P, the coordinates of P in this example. Okay, this is the example in which we have to find coordinates of P. So this value is of x1, this value is of y1, and this is the value of x2 and this is y2. Now suppose this is m1 and this is m2. ओके, इस तरह से अगर हम x1 y1 x2 y2 और m1 m2 लिख लेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना इजी हो जाएगा। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला वी विल फाइंड द वैल्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ P m1 x2, इट मीन्स 3 into -1 प्लस m2 x1, m2 is 2 x1 is 1, so 2 into 1 upon m1 plus m2, that is 3 plus 2, and second element m1 y2 3 into 4 plus m2 y1 2 into 3 upon m1 plus m2. Now coordinates of P will be -3 plus 2 upon 5, and this will be 12 plus 6 upon 5 and -1 upon 5 and 18 upon 5. So these are the coordinates of P which we have found using section formula. ये P एक ऐसा पॉइंट है जो AB के ऊपर लाई कर रहा है और AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, और हमें उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ किया जिससे उसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं -1 upon 5 and 18 upon 5. Now one more example I have taken, that PQ is a line segment. Coordinates of P are 3 2 and coordinates of Q are 7 6, and the ratio in which the line segment PQ is divided by the point T is 1:3.
अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये फॉर्मूला हमें लर्न नहीं हुआ या हमारे से कुछ मिस्टेक हो रही है, हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो हमें इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे बिना इस फॉर्मूले को लर्न किए। इसको अगर आप ये भूल गए हैं किसी वजह से एग्ज़ाम में, तो कैसे हम इसको सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। तो इसमें बहुत इजी है, कैसे कि जैसे ये रेशियो लिखा हुआ है ना, तो जो नंबर इधर लिखा हुआ है लेफ्ट में उसकी मल्टीप्लाई राइट में होनी है, और जो राइट में लिखा है उसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट में होनी है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होना है। अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए हैं, आपको नहीं याद आया फॉर्मूला, बट आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, टी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई इधर, 1 इधर लेफ्ट में लिखा हुआ है तो उसकी मल्टीप्लाई इधर 7 में होनी है, एक्स में। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू हमारी x की होती है, ये y की होती है ना, ये x की होती है, ये y की होती है। और t में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस नंबर की मल्टीप्लाई x वाली वैल्यू में ही करनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यानी 1 की मल्टीप्लाई 7 में होगी, 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, और क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो इन रेशियोज की मल्टीप्लाई इन फर्स्ट एलिमेंट में ही करनी है आपने। तो आप 1 की मल्टीप्लाई 3 में नहीं करना है, इस 7 में करनी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 7, बीच में प्लस आएगा, 3 इंटू 3 अपॉन इन दोनों को ऐड कर देंगे आप। ऐसे ही आप जब y की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई 1 विद 6 प्लस 3/2 एंड 1 प्लस 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ t 7 plus 9 upon 4 and 6 plus 6 upon 4. It means the coordinates of 3 are 16 upon 4 and 12 upon 4. It implies t is 4 and 3. तो इस तरह से बिना इसको लर्न किए भी वी कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान रखना है आपने। जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लाई रेशियो की मल्टीप्लाई x में होनी है, जब आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं तब आप रेशियो की मल्टीप्लाई y में कर रहे हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ऐसे, इधर की इधर और इधर से इधर। ओके, तो इस तरह से आप सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं बिना याद किए। नाउ अब सेक्शन फॉर्मूला का एक और इसमें एप्लीकेशन है क्या कि ये जो C है ये इस बार ए बी का मिड पॉइंट गिवन है। C इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। C A B लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जब गिवन होगा आपको, देन यू विल यूज सेक्शन फॉर्मूला। बट सेक्शन फॉर्मूला के यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, वो कैसे, ये बहुत ईजी है कि जब भी कोई मिड पॉइंट होगा किसी भी लाइन सेगमेंट का और उसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तब आपने क्या करना है, x1 दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, and you will use x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। मैं लिख देता हूँ x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। कोई रेशियो की जरूरत नहीं है, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको ये याद रखना है कि जब आप c की कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो जो a की x की वैल्यू है और b की x की वैल्यू है वो c की x की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होगा। c की वैल्यू निकालनी है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x की वैल्यू कैसे निकालनी है, इन दोनों x की वैल्यूज़ को प्लस कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाई 2, एंड वैल्यू y इज y1 प्लस y2, प्लस में वो माइनस बन जाएगा, तो ये आपके c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6/2, 4/2। इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर 3 and 2। इट मीन्स 3, 2 is the midpoint of line segment AB। Okay, so 3, 2 is the midpoint of line segment AB। Now this was the section formula and distance formula I told you, and now you will practice from your NCERT books or any other books to okay। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, कहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। ओके, तो ये था आज का हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला।